Bismillahirrahmanirrahim. In the name of God, the most merciful and beneficent. Dear students, in previous lecture, we have talked about the working capital concepts, the characteristics of working capital, the determinants of working capital, and the last one, the working capital policies. In today's lecture, we shall be talking about the classification of working capital, and number 2, the spontaneous financing, what is meant by spontaneous financing, and 3, approaches to working capital, that is hedging approach, the conservative approach, and aggressive approach. Number 1, classification of working capital. How can we classify the working capital, or how can we classify the current assets? We can classify the working capital or current assets based on components and based on time. Based on components, we can say that cash, marketable securities, account receivable, inventory are the different components of working capital. Similarly, the account receivable is also current assets and it is also a component of the working capital. So based on component, all those current assets which are recorded on the left side of the balance sheet is called components of the working capital and which are easily convertible into cash. All those current assets which are easily convertible into cash are called the components of working capital. If we classify the working capital based on time, then we are having permanent working capital and temporary working capital. How can we define the permanent working capital and temporary working capital? Number 1 is permanent working capital. It is that amount of working capital which is that amount of current assets which is required for the long term in your business. For example, we can see that on the x-axis we are having time and on the y-axis we are having dollar amount. So permanent current assets are permanent working capital requirements is basically for the long term of the business. The amount of current assets required to meet a firm long-term minimum needs. It means this working capital is permanently required in the business. Now temporary working capital, all those current assets which are seasonally required in the business, that is called temporary working capital or temporary current assets. Now you can see that below the red line we are having permanent current assets. It is required for the business permanently and we can see that it is increasing as the time goes by. It is increasing because the business is growing and the business is expanding, and as the business expanding, the permanent current assets are its requirement are going high. Similarly, if we see the temporary current assets, so this is required sometime very high and sometime very low. The amount of current assets that varies with the seasonal requirement. For example, अगर हम देखें
तो इसमें एक सीज़न में ज़्यादा रिक्वायरमेंट है करंट एसेट्स की और दूसरे सीज़न में कम है। फॉर एग्जांपल अगर आप आइसक्रीम बिजनेस का एग्जांपल लेते हैं तो आइसक्रीम बिजनेस में अगर आप गर्मियों में देखें तो डिमांड आहिस्ता आहिस्ता मार्च अप्रैल से आहिस्ता आहिस्ता इंक्रीज़ होता है और फिर डिक्रीज़ होता है जून जुलाई अगस्त सितंबर में। सितंबर के बाद अक्टूबर नवंबर और स्पेशली दिसंबर जनवरी फरवरी में इसकी डिमांड बिल्कुल लो हो जाती है और उसमें करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होती। फिर आहिस्ता आहिस्ता डिमांड ज़्यादा होती है जब गर्मियों का मौसम आता है, जब सर्दियों का मौसम आता है डिमांड आहिस्ता आहिस्ता कम हो जाती है। तो ऐसे बिजनेस में जिसमें सीज़न के प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें टेम्परेरी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत जब सीज़न आ जाती है तो ज़्यादा होती है उसकी ज़रूरत, जब सीज़न चली जाती है तो उसकी ज़रूरत कम हो जाती है। अगर आप टेक्सटाइल में देखें तो कॉटन की डिमांड गर्मियों में ज़्यादा होती है, तो कॉटन की जो मटेरियल्स है उसकी ज़्यादा ज़रूरत होगी गर्मियों में एज़ कम्पेयर टू सर्दियों में। सो दैट इज़ वाई इट इज़ फॉलोइंग जस्ट लाइक खरोज, ठीक है, खरोज फॉलो करते हैं टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। कभी डिमांड इस क्योंकि सीजनल रिक्वायरमेंट है तो कभी डिमांड ज़्यादा हो जाती है और कभी कम हो जाती है और सीज़न टू सीज़न ये रिक्वायरमेंट्स वेरीज करती हैं। दैट इज़ वाई दिस इज़ कॉल्ड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल। तो कुछ करंट एसेट्स ऐसे हैं जो कि आपको जिसकी ज़रूरत आपको लॉन्ग टर्म के लिए होती है और कुछ करंट एसेट्स है जिसकी ज़रूरत आपको सीज़न टू सीज़न होते हैं और आपने उस ज़रूरत के बिना पर जो है पैसे इन्वेस्ट करने हैं, आपने उसकी ज़रूरत को देख के फाइनेंसिंग करनी है, ठीक है। फाइनेंसिंग करंट एसेट्स शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म मिक्स, देन वी विल सी द हाउ वी कैन फाइनेंस द करंट एसेट्स। मतलब हम मिक्स देखते हैं कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कितनी होनी चाहिए और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कितनी होनी चाहिए। व्हाट इज स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। लेकिन इसमें एक बात याद रखें कि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग इज समथिंग एल्स, ठीक है। स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस, जब बिजनेस स्टार्ट हो जाता है तो ट्रेड क्रेडिट या अदर पेबल्स या एक्रूअल्स जो ऑटोमेटिकली जो है वो आते हैं बिजनेस में, उसको हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल आप कर्जे पर कोई चीज़ खरीदते हैं, ठीक है, किसी से मतलब आप उसको बाद में पे करेंगे, तो दिस स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। डे टू डे ऑपरेशन ऑफ द बिजनेस में अक्सर हमारे बिजनेस में स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग अराइज होती है, ठीक है, बेस्ड ऑन पॉलिसीज रिगार्डिंग पेमेंट फॉर द परचेज, लेबर टैक्सेस एंड अदर एक्सपेंसेस। वी आर कंसर्न विद द मैनेजिंग नॉन स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग ऑफ एसेट्स। जहाँ तक हम करंट वर्किंग कैपिटल की बात है तो वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट में जो हम फाइनेंसिंग करते हैं वो हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग की बात नहीं करते, क्योंकि जब हम टैक्सेस पे करते हैं तो हो सकता है कि हम 1 महीने बाद पे करें, जब हम 2 महीने 1 महीने बाद पे करते हैं तो कुछ न कुछ जो है उसके थ्रू भी हमारा बिजनेस फाइनेंस हो जाता है। जब हम परचेस करते हैं किसी चीज़ को बिजनेस में, रॉ मटेरियल परचेस करते हैं और क्रेडिट परचेस करते हैं, तो 2-3 महीने बाद अगर हम पे करें तो उससे भी कुछ ना कुछ फाइनेंसिंग हो जाती है। दिस इज कॉल्ड स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। लेकिन जब हम करंट एसेट्स और वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, परमानेंट वर्किंग कैपिटल और टेम्पररी वर्किंग कैपिटल की बात करते हैं, तो हम स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग की बात नहीं करते, बल्कि हम लोन की बात करते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं कि कहाँ से वो पैसा, वो मनी आएगा जिससे हम जो है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स को जो है नीड्स को फुलफिल करें और परमानेंट वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट्स के नीड्स को फुलफिल करें। नेक्स्ट हम आते हैं अप्रोचेस टू वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। इसमें कौन कौन से अप्रोचेस हो सकते हैं। नंबर 1 इज हेजिंग अप्रोच और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच क्या है। अगर आप इस एक साइड पे देखें तो फिक्स एसेट्स है, करंट एसेट्स है और ऊपर हमने लिखा है शॉर्ट टर्म फाइनेंस। इससे पहले मैंने कहा कि जो रेड लाइन है उससे नीचे आपके साथ करंट एसेट्स है, जो ब्लू लाइन है उसके नीचे आपके साथ फिक्स एसेट्स है। लेकिन जो रेड लाइन के ऊपर ग्रीन लाइन है जो कि खरोस फॉर्म में है, ठीक है, उसको जो है हम टेम्पररी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स
कहते हैं। मतलब वो सीजन टू सीजन या सीजनल रिक्वायरमेंट से बिजनेस में वो करंट एसेट जो कि सीजनली रिक्वायर्ड होती हैं उसको हम जो है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू फाइनेंस करते हैं, जबकि वो रिक्वायरमेंट जो कि फिक्स एसेट्स के हैं और करंट एसेट्स के हैं जो कि रेड लाइन के नीचे है, इस सारों को हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के थ्रू फाइनेंस करते हैं। इस किस्म के अप्रोच को हम हेजिंग अप्रोच कहते हैं कि जब हमारी इक्विटी और जब हमारा लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग जिसमें इक्विटी और डेट दोनों आते हैं। डेट कहते हैं कर्जे को, लेकिन 1 साल से ज़्यादा कर्जा अगर आप लेते हैं तो उसको हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं। अगर 1 साल से कम मुद्दत के लिए आप कर्जा लेते हैं या आप उसको हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कहते हैं, ठीक है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ज़रिए परमानेंट फिक्स एसेट्स को और करंट एसेट्स के उस हिस्से को जो कि परमानेंटली रिक्वायर्ड है इन द बिजनेस, तो उसको हम फिर क्या कहते हैं, मैच्योरिटी मैचिंग और हेजिंग अप्रोच। ए मेथड ऑफ फाइनेंसिंग वेयर ईच एसेट would be offset with a financing instrument of the same approximate maturity। दूसरी बात, इसमें अगर सीज़न आपका 3 महीने का है तो आप शॉर्ट टर्म लोन जो बैंक से लेते हैं या किसी आदमी से लेते हैं वो आप 3 महीने का लें। अगर आप 3 महीनों के लिए शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं, किसी से लोन लेते हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, तो इसको हम कहते हैं मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। मतलब आपने जो रिक्वायरमेंट की जो मैच्योरिटी है, जो नीड्स है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के, उसके मुताबिक आपने शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की। अगर नीड जो है, अगर सीज़न जो है वो 3 महीनों का है तो 3 महीनों के लिए आपको ज़्यादा रिक्वायरमेंट है बिजनेस में वर्किंग कैपिटल या करंट एसेट्स की, तो आपने 3 महीनों के लिए लोन ले लिया और फिर जब सीज़न ख़त्म हो गया तो उसमें आपने पे किया। उसी जो ज़्यादा डिमांड जब आएगा उसे, तो उसी से आप पे करते हैं इंटरेस्ट कास्ट या अदर कास्ट। हेजिंग अप्रोच और मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच लिखा है इसके साथ कि लिस्ट अमाउंट फाइनेंस्ड स्पॉन्टेनियसली बाय पेएबल्स एंड एक्रूवल्स। अच्छा, रिड मतलब करंट एसेट्स के साथ इस लाइन की एसोसिएशन है कि स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग जो है वो इसमें इतने ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है इस बिज़नेस में, ठीक है। और लेस अमाउंट जो है उसमें इन्वॉल्व है स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग। फिर भी अगर स्पॉन्टेनियस फाइनेंस की हम बात करते हैं तो वो करंट एसेट्स के साथ एसोसिएटेड है, नॉट द टेम्पररी वर्किंग कैपिटल बट परमानेंट वर्किंग कैपिटल। In addition to the spontaneous financing, payables and accruals, अगर आप ग्रीन लाइन को देखें जो कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की है, तो वो हम कहते हैं कि इसमें स्पॉन्टेनियस फाइनेंसिंग शामिल नहीं है, बल्कि उससे ज़्यादा हम जो है फाइनेंस या लोन लेते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करते हैं। चूँकि बिज़नेस की रिक्वायर्ड सीज़न एक सीज़न में ज़्यादा होती है तो हमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है विद द पैसेज ऑफ टाइम। फाइनेंसिंग नीड्स एंड द हेजिंग अप्रोच। अच्छा, इसमें क्या है, फिक्स एसेट्स एंड द नॉन सीजनल पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स, मतलब परमानेंट वर्किंग कैपिटल, नॉन सीजनल पोर्शन ऑफ करंट एसेट्स मीन परमानेंट वर्किंग कैपिटल, आर फाइनेंस विद लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी, लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ एसेट्स टू कवर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कॉस्ट ऑफ द फर्म। जब हम लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं तो लाजमी बात है उसके लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की ज़रूरत होगी या लॉन्ग टर्म डेट एंड इक्विटी की ज़रूरत होगी, ठीक है। डेट कवर द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग कास्ट। फाइनेंसिंग कास्ट क्या है, इंटरेस्ट वगैरह, या अगर हम जो है इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, शेयर्स जो है वो बेचते हैं और लोग ख़रीदते हैं, तो फिर आपने डिविडेंड देना होगा, तो डिविडेंड भी इक्विटी की कास्ट हो गई। डिविडेंड या मतलब डिविडेंड इज द पोर्शन ऑफ प्रॉफिट विच इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द ओनर्स, जबकि इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट दैट इज द कास्ट दैट इज गिवन टू द क्रेडिटर्स, मतलब जो बॉन्ड होल्डर्स है या जो लोन प्रोवाइडर्स है बिजनेस को, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या देते हैं, उसको हम इंटरेस्ट देते हैं, जबकि जो ओनर्स है उसको हम डिविडेंड देते हैं अगर कंपनी फॉर्म ऑफ बिजनेस है।
Seasonal needs are financed with short-term loans under normal operation. Sufficient cash flow is expected to cover the short-term financing costs. Seasonal needs जो है वो हम कहाँ से फाइनेंस करते हैं? हेजिंग अप्रोच में शॉर्ट टर्म लोन के जरिए अंडर नॉर्मल ऑपरेशन ऑफ सफिशिएंट कैश फ्लो एक्सपेक्टेड टू कवर द शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कास्ट, और उसी से हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कास्ट जो है फुलफिल करते हैं। किस तरह फुलफिल करते हैं? देखिए, सीजनल ऑर्डर्स रिक्वायर द परचेज ऑफ द इन्वेंट्री बियॉन्ड करंट लेवल। एक तो ये है कि आइसक्रीम के बिजनेस के लिए हमने ज़्यादा परचेज इन्वेंट्री की करनी है गर्मियों के महीनों में, तो गर्मियों के महीने में आपने बहुत ज़्यादा उसमें इन्वेस्टमेंट की और ज़्यादा जो है इन्वेंट्री ख़रीदी जो भी उसके लिए ज़रूरत है। इंक्रीज इन्वेंट्री इज़ यूज टू मीट द इंक्रीज डिमांड फॉर द फाइनल प्रोडक्ट। ये इंक्रीज इन्वेंट्री जो है इसको हम फिनिश गुड्स में चेंज कर देते हैं और फिर सेल करते हैं। जब सेल करते हैं तो ज़्यादा डिमांड होता है, इसीलिए सेल होता है। अगर सेल नहीं होता तो फिर हम इन्वेंट्री को क्यों परचेस करते हैं? लाजमी बात है, सीज़न आ गया है तो इन्वेंट्री को परचेस करना पड़ेगा उस, क्योंकि डिमांड जो है, जो कस्टमर्स के डिमांड है और नीड्स है, उसको फुलफिल करना पड़ेगा और उस पर उसको सेल करना पड़ेगा। ठीक है, सेल बिकम रिसीवेबल। सेल डायरेक्टली कैश में भी कन्वर्ट हो सकता है और अकाउंट रिसीवेबल में। तो कहते हैं कि सेल बिकम रिसीवेबल एंड रिसीवेबल आर कलेक्टेड एंड बिकम कैश। तो आप इस तरह भी इसके साथ लिख सकते हैं कि सेल्स बिकम कैश डायरेक्टली अगर कैश सेल है, एंड सेल्स बिकम रिसीवेबल अगर क्रेडिट सेल है। तो सेल से रिसीवेबल और रिसीवेबल से कैश, और वही कैश जो है हम वापस दे देते हैं जो शॉर्ट टर्म कास्ट है या जो इंटरेस्ट है या जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो हम उसके ज़रिए वापस पे करते हैं। The resulting cash funds can be used to pay off the seasonal short-term loan and cover associated long-term financing cost. Even हम इससे कुछ फाइनेंसिंग जो long-term financing cost है वो भी कवर अप कर सकते हैं, जैसे डिविडेंड और जैसे इंटरेस्ट अमाउंट। रिस्क वर्सेस कास्ट ट्रेड ऑफ कंजर्वेटिव अप्रोच। हम जब हम कंजर्वेटिव अप्रोच की बात करते हैं तो दिस इज बेसिकली कंजर्वेटिव अप्रोच। कंजर्वेटिव अप्रोच में ये है कि कुछ पोर्शन जो है, जो रिट पोर्शन है, दो जगहों पे शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग या जो रिट लाइन है उसके नीचे दो जगहों पे रिट पोर्शन है। दिस इज बेसिकली दोस पोर्शन वेयर देयर इज नो नीड ऑफ द करंट एसेट्स। आपको यहाँ पे कोई नीड नहीं है करंट एसेट्स की, लेकिन फिर भी आप उसे फाइनेंस करते हैं क्योंकि यहाँ पे सीज़न ख़त्म हुआ है, सीज़न ऊपर है, सीज़न ख़त्म हुआ है, यहाँ पे नीड नहीं है। ठीक है, कॉटन की डिमांड नहीं है, यहाँ पे आइसक्रीम की डिमांड नहीं है, लेकिन फिर भी आप उसे लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ज़रिए फाइनेंस करते हैं। आप पैसे आपके साथ ज़्यादा है, यहाँ पे भी आपने इन्वेंट्री डाली है, यहाँ पे भी आपने करंट एसेट्स में इन्वेस्टमेंट की है। तो मतलब कंजर्वेटिव अप्रोच हम इसे कहते हैं जहाँ पे आप रिस्क को जो है बहुत कम लेते हैं, बहुत मिनिमाइज लेते हैं, रिस्क को मिनिमाइज करते हैं, करंट एसेट्स अपने साथ बहुत ज़्यादा रखते हैं। ठीक है, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं होती फिर भी आप ज़्यादा रखते हैं। आइडल कैश, आइडल चीज़ आपके साथ ज़्यादा होती है जिसकी वजह से यहाँ पे लो प्रॉफिटेबिलिटी और लो रिस्क का एक किस्म का सिचुएशन है, सिनारियो है। तो लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के ज़रिए जब हम शॉर्ट टर्म नीड्स को फाइनेंस करते हैं, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ द करंट एसेट्स या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? इस किस्म के अप्रोच को हम कंजर्वेटिव अप्रोच कहते हैं। ठीक है, नॉट ओनली द फिक्स्ड एसेट्स, नॉट ओनली द परमानेंट वर्किंग कैपिटल, बट आल्सो द सम पोर्शन ऑफ द टेम्पररी वर्किंग कैपिटल इज फाइनेंस्ड बाय द लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। दिस इज कॉल्ड द conservative approach. We are taking less amount of risk and we are getting less amount of profit in such a situation, in such a conservative approach. Comparison with aggressive approach. शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट्स। एक तो यह है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बेनिफिट्स क्या है और एक यह है कि शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिस्क क्या है। जब हम 3 महीने के लिए, 5 महीने के लिए, मतलब 1 साल से कम मुद्दत के लिए लोन लेते हैं, फाइनेंसिंग करते हैं, तो उसके फ़ायदे क्या है और नुकसान क्या है। ठीक है, अगर हम लॉन्ग टर्म नीड्स को शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के ज़रिए फाइनेंस करें तो इसमें एक तो ये है, ठीक है, फाइनेंसिंग लॉन्ग टर्म नीड्स विद ए लोअर इंटरेस्ट कास्ट देन शॉर्ट टर्म डेट।
अगर आप देखते हैं कि कंजर्वेटिव अप्रोच का एग्रेसिव अप्रोच पर क्या वो है या शॉर्ट टर्म के बेनिफिट्स क्या है, एक तो ये है कि आप जो है लोअर इंटरेस्ट कास्ट के ज़रिए आप जो है फाइनेंस कर सकते हैं लॉन्ग टर्म नीड्स को। तो एक तो लोअर इंटरेस्ट कास्ट है, बारोइंग ओनली व्हाट इज़ नेसेसरी, और दूसरा ये है कि आप बारो करते हैं जो नेसेसरी है, ठीक है, उससे ज़्यादा बारो नहीं करते। उससे ज़्यादा अगर 3 महीनों के लिए ज़रूरत है लोन की तो आप 3 महीने लेते हैं, फिर बाद में नहीं लेते हैं, ठीक है। शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग रिस्क, refinancing short-term obligation in the future, uncertain future interest cost। एक रिस्क तो ये है कि आप बार बार फाइनेंसिंग करते हैं, और दूसरा रिस्क ये है कि अनसर्टन फ्यूचर इंटरेस्ट कास्ट। फ्यूचर इंटरेस्ट कास्ट जो है वो आपको फिर सर्टन नहीं होता। फॉर एग्जांपल 3 महीने के लिए आपने फाइनेंसिंग किया, 3 महीने बाद आपकी जो लोन है वो ख़त्म हुआ, आपने वापस किया, फिर आप दोबारा फाइनेंसिंग करेंगे, फिर वो जो है ख़त्म हुआ 3 महीने बाद या 6 महीने बाद, फिर आप दोबारा फाइनेंसिंग करेंगे, दोबारा लोन लेंगे, जाएंगे कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, लोन कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, साइन करेंगे, सब कुछ करेंगे बैंक के साथ या किसी आदमी के साथ, जो भी हो, जहाँ से भी आप फाइनेंसिंग कर रहे हैं। अनसर्टेन फ्यूचर इंटरेस्ट कास्ट, दूसरी बात यह है कि हो सकता है 3 महीने बाद वो आपको इंटरेस्ट कास्ट ज़्यादा करे या कम करे, ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा करे, उमूमन ज़्यादा होता है, कम नहीं होता। तो अनसर्टेन फ्यूचर इंटरेस्ट कास्ट, उसमें चेंजेस आते हैं। जबकि अगर हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग की जब हम बात करते हैं, जो कि ज़्यादातर कंजर्वेटिव अप्रोच में इस्तेमाल होती है, तो उसकी जो है एक ख़ास रेट होता है, ख़ास इंटरेस्ट रेट होता है जो कि फ़िक्स होता है लॉन्ग टर्म के लिए। तो उसमें अनसर्टेन फ्यूचर इंटरेस्ट कास्ट जो है वो नहीं होता, और रीफाइनेंसिंग की भी ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म बनाया है। रिजल्ट क्या हो गया? मैनेजर एक्सेप्ट ग्रेटर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग ग्रेटर रिस्क। ग्रेटर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इन एक्सचेंज फॉर टेकिंग ग्रेटर रिस्क। अच्छा, मैनेजर्स की सोच क्या है? मैनेजर्स की सोच ये है कि वो ज़्यादा प्रॉफिट कमाए, ज़्यादा रिस्क ले। तो ज़्यादा रिस्क जो है वो तो एग्रेसिव अप्रोच में है। एग्रेसिव अप्रोच क्या है? जब आप परमानेंट वर्किंग कैपिटल के नीड्स को भी शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए फुलफिल करें। जैसे नीचे अभी दिया गया होगा, यहाँ पे आप देखें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग नीचे तक आई है। करंट एसेट्स जो रेड लाइन है वो थोड़ा नीचे है, ठीक है, और खर्च भी कवर्ड है शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए। करंट एसेट्स का कुछ पोर्शन भी कवर्ड है शॉर्ट टर्म फाइनेंस, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को हमने बहुत ज़्यादा स्क्वीज किया है, मिनिमाइज किया है। तो जब हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को स्क्वीज करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग ज़्यादा करते हैं, तो हमें बार बार शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग करने की ज़रूरत होती है, जो कि हमने इससे पहले कहा। ये तो रिस्क हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का। अनसर्टेन फ्यूचर इंटरेस्ट कास्ट, ये तो रिस्क हो गया शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग का, लेकिन उसके साथ प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि आपके साथ आइडल कैश नहीं होता, जिस तरह आइडल कैश या आइडल करंट एसेट्स नहीं होते, जो कि जिसको आपने फिर मेंटेन भी करना है तो मेंटेनेंस कास्ट भी उस पर आता है, जिसको आपने स्टोरेज करना है तो स्टोरेज कास्ट भी आता है, तो बहुत सारे कास्ट उस पर आते हैं, ठीक है। तो इसी प्रोसेसिंग कास्ट भी आते हैं। तो इसी तरह शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग आपके लिए मोर रिस्क है इसमें, लेकिन मोर प्रॉफिटेबिलिटी भी है। अगर आप ऊपर देखें जो कंजर्वेटिव अप्रोच है, तो इसमें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग बहुत मिनिमम लेवल पर आप करते हैं, जबकि लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को आपने ज़्यादा किया है और शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को आपने स्क्वीज किया है। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जो नुकसानात है वो भी स्क्वीज हो जाते हैं उसके साथ, और जो आपका बिजनेस है वो कंजर्वेटिव हो जाता है, ज़्यादा रिस्क टेकिंग वाला बिजनेस नहीं होता, ठीक है। फिर आते हैं नीचे। अगर हम यहाँ पे देखें तो एग्रेसिव अप्रोच में सबसे पहले हमने एक मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच पढ़ा, फिर कंजर्वेटिव अप्रोच, अब एग्रेसिव अप्रोच। तो एग्रेसिव अप्रोच में हम लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग को स्क्वीज करते हैं, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग को ज़्यादा करते हैं। इतना करते हैं कि परमानेंट वर्किंग कैपिटल का कुछ पोर्शन हम शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए फाइनेंस करते हैं। फर्म इंक्रीज द रिस्क एसोसिएटेड विद द शॉर्ट टर्म बोरोइंग बाय यूजिंग ए लार्जर पोर्शन ऑफ शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं समरी ऑफ द शॉर्ट वर्सेस लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। एक तरफ आपके साथ शॉर्ट टर्म और दूसरी तरफ लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग है। फाइनेंसिंग मैच्योरिटी 1 साल से कम मुद्दत के लिए शॉर्ट टर्म, और लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग मतलब
शॉर्ट टर्म में पैसे कहाँ से आएंगे, लॉन्ग टर्म में कहाँ से आएंगे, कौन से सोर्सेस होंगे, ठीक है। एसेट मैच्योरिटी को हम देखें तो शॉर्ट टर्म जिसको हम करंट एसेट्स कहते हैं उसमें फिर टेम्पररी है एंड लॉन्ग टर्म परमानेंट है, ठीक है। तो हमने दो में डिवाइड किया है, दो देयर आर टू टाइप्स इन द वर्किंग कैपिटल, टेम्पररी और परमानेंट, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमने परमानेंट सारा कुछ डाल दिया, ठीक है। शॉर्ट टर्म में अगर आप शॉर्ट टर्म के जरिए शॉर्ट टर्म्स यानी टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करते हैं तो फिर आप ये येलो पोर्शन है, आप देखें येलो मॉडरेट रिस्क एंड प्रॉफिटेबिलिटी, तो आपको मॉडरेट रिस्क होगा और प्रॉफिटेबिलिटी होगी, विच इज बेसिकली मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच, मतलब शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए शॉर्ट टर्म या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना। फिर हम आते हैं नीचे की तरफ, शॉर्ट टर्म के जरिए आप लॉन्ग टर्म यानी परमानेंट वर्किंग कैपिटल को फाइनेंस करना, तो फिर क्या होगा, हाई रिस्क और हाई प्रॉफिटेबिलिटी होगी। दिस इज बेसिकली एग्रेसिव अप्रोच। अगर आप एग्रेसिव अप्रोच को देखें तो शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग के जरिए हम लॉन्ग टर्म या परमानेंट वर्किंग कैपिटल जो नीड्स है उसको जो है फुलफिल करते हैं, ठीक है, उसकी ज़रूरत को पूरा करते हैं। तो इस किस्म के जो दिस इज बेसिकली ये कौन सा अप्रोच है जो रेड है कलर में है, दिस इज बेसिकली ये जो रेड कलर का जो सेल है ये शो करते हैं कि हाई रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी, दिस इज बेसिकली एग्रेसिव अप्रोच। फिर हम आते हैं लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के जरिए, इसमें भी दो है। लॉन्ग टर्म के फाइनेंसिंग के जरिए या तो आप शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल रिक्वायर या करंट एसेट्स या वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेंगे या लॉन्ग टर्म दोनों को फुलफिल करेंगे। अगर आप लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के जरिए सिर्फ शॉर्ट टर्म या टेम्पररी वर्किंग कैपिटल के रिक्वायरमेंट को फुलफिल करते हैं तो आपके साथ कंजर्वेटिव अप्रोच आता है जिसमें लो रिस्क और लो प्रॉफिटेबिलिटी होती है। लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के जरिए आप परमानेंट पोर्शन ऑफ द वर्किंग कैपिटल को अगर आप फुलफिल करते हैं तो फिर मॉडरेट रिस्क प्रॉफिटेबिलिटी है, विच इज बेसिकली द मैच्योरिटी मैचिंग अप्रोच। कंबाइनिंग लायबिलिटी स्ट्रक्चर एंड करंट एसेट डिसीजन। अब हम आते हैं कि सर आप कंबाइन करेंगे कौन से लायबिलिटी स्ट्रक्चर के जरिए कौन से एसेट्स को हमने फाइनेंस करना है। The level of current assets and the method of financing those assets are interdependent। एक तो ये है कि करंट एसेट्स का जो लेवल जितना बढ़ेगा उतना ही मेथड ऑफ फाइनेंसिंग जो है ये आपको डिटरमिन करेगा कि कौन सा मेथड फाइनेंसिंग का ज़रूरी है। अगर आपका बिजनेस इस टाइप का है कि उसमें सीजनल रिक्वायर्स बहुत ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आपको करंट एसेट्स की कुछ सीजन में ज़्यादा ज़रूरत होगी, कुछ में कम ज़रूरत होगी, तो लिहाजा आप शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग कुछ सीजन में करेंगे और कुछ में नहीं करेंगे। सो दैट इज़ वाई के जो लेवल है करंट एसेट्स का वो बेसिकली डिटरमिन करता है और वो इंटरडिपेंडेंट है लायबिलिटी स्ट्रक्चर के साथ। नंबर 2, ए कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स। अगर आप करंट एसेट्स बहुत हाई लेवल पे रखते हैं जो कि कंजर्वेटिव पॉलिसी, आप कंजर्वेटिव है, आप रिस्क नहीं लेना चाहते, आप ये रिस्क नहीं लेना चाहते कि जो है मेरे साथ कैश कम हो, मेरे साथ इन्वेंट्री कम हो, ऐसा ना हो कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए और मेरे साथ इन्वेंट्री बिल्कुल ना हो या ख़त्म हो तो फिर मेरा बिजनेस ख़त्म हो जाएगा या मेरे पास पैसे नहीं होंगे, तो आप कंजर्वेटिव पॉलिसी जो है इख्तियार कर लेते हैं और हम अपने साथ करंट एसेट्स को बहुत हाई लेवल पे रखते हैं। डेट अलाउज ए मोर एग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग करंट एसेट्स। ये बेसिकली आपको अलाउ करता है कि आप एग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग कर सकते हैं, क्योंकि एग्रेसिव में इसके लिहाज से फिर रिस्क ज़्यादा होगा लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर आपके साथ हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स है तो आप एग्रेसिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग को भी यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू कन्वर्ट द कंजर्वेटिव अप्रोच इनटू एग्रेसिव अप्रोच। ए कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग। एक दूसरी बात, अगर एक ऊपर तो कंजर्वेटिव पॉलिसी यानी हाई लेवल ऑफ करंट एसेट्स है, दूसरा जो कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग है उसका क्या मतलब है। मतलब अगर हम कंजर्वेटिव पॉलिसी ऑफ करंट एसेट्स को देखते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि आपके साथ करंट एसेट्स बहुत ज़्यादा है, लेकिन अगर आप कंजर्वेटिव मेथड ऑफ फाइनेंसिंग की बात करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप इक्विटी फाइनेंसिंग करते हैं, क्योंकि इक्विटी फाइनेंसिंग में रिस्क नहीं होता जबकि डेट फाइनेंसिंग में रिस्क ज़्यादा होता है।
अच्छा, लास्ट में मैं एक क्वेश्चन को आंसर करूंगा जो कि एक स्टूडेंट ने पूछा है, दैट इज़ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोन, डेट एंड बारो। लोन, डेट एंड बारो में क्या फ़र्क है। बारो कहते हैं लोन लेने को, जो देने वाला होता है उसको हम लेंडर कहते हैं, और लेंडर और बारोवर के दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसको हम लोन कहते हैं। लोन कॉन्ट्रैक्ट इज़ बेसिकली हैविंग डिफरेंट कंडीशंस। फॉर एग्जांपल इसमें इंटरेस्ट रेट होता है, इंटरेस्ट चार्जेस कितने आएंगे, कितनी मुद्दत तक इंटरेस्ट चार्जेस आएंगे, पीरियोडिक इंटरेस्ट चार्जेस होंगे या जो है लमसम होंगे, मतलब एट द एंड ऑफ द ईयर, या मंथली आप देंगे या सेमी एनुअली देंगे या क्वार्टरली इंटरेस्ट अमाउंट देंगे। ठीक है, ये तो लेंडर और बारोवर के दरमियान, ठीक है, लोन का कॉन्ट्रैक्ट बनता है। लेंडर लोन देने वाला, बारोवर लोन लेने वाला। डेट क्या है या डेट फाइनेंसिंग क्या है। डेट फाइनेंसिंग जो है हम आमतौर पे बिजनेस में यूज़ करते हैं। इसका जो मतलब बिजनेस में जो सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग है वो दो है बेसिकली। मेन सोर्स ऑफ फाइनेंसिंग वो दो है, दैट इज ओनर्स फाइनेंसिंग या उसको हम इक्विटी फाइनेंसिंग कहते हैं, और दूसरा जो है डेट फाइनेंसिंग। डेट फाइनेंसिंग में बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और लोन वगैरह, लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन, ये सारे जो है डेट फाइनेंसिंग में आते हैं। मतलब जो ओनर्स की तरफ से पैसे बिजनेस में लगाए जाते हैं या जो ओनर्स बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं, और जो क्रेडिटर्स इन्वेस्टमेंट करते हैं बिजनेस में उसको हम डेट फाइनेंसिंग कहते हैं। थैंक यू। If you have any question in this lecture, you can ask me. I will answer all those questions in the next lecture. Thank you.